بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، اس سے پہلے آپ اس کہانی کی 206 ایک ساتھ سن چکے ہیں۔ اب قسط 207 ملاحظہ فرمائیں۔ ہمیں آئندہ زیادہ گمبھیر معاملات میں الجھنے سے بچنا چاہیے۔ ریڈارڈ والا تجربہ ہمارے لیے خاصا سبق آموز تھا، بشرطے کہ ہم اسے سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ راحیلہ کچھ دیر میرے پاس ٹھہری رہی، اس کے لیے اسپیشل گاڑی منگوانی پڑی۔ اس کے جانے کے بعد بھی میں کافی دیر تک دوبارہ کام کی طرف متوجہ نہ ہو سکا۔ میں اس اچانک اور غیر متوقع ملاقات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ دفتن فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف سرتاج تھی۔ وہ شگفتہ لہجے میں بولی، مجھے پتا چلا ہے وہ سیاہ پوش حسینہ تمہارے آفس سے رخصت ہو چکی ہے۔ میں حیرت کے باعث ایک لمحے کے لیے خاموش رہا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی راحیلہ کے بارے میں باخبر رہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاں، راحیلہ جا چکی ہے، نے دھیمے لہجے میں کہا۔ یہ میری زندگی کے حیرت انگیز ترین اتفاقات میں سے ایک اتفاق تھا کہ جس وقت میں اس لڑکی کو دیکھنے کی بڑی شدت سے خواہش مند تھی، عین اسی وقت وہ آن پہنچی۔ زرتاج نے کہا۔ زرتاج سے بہت دیر باتیں ہوتی رہیں۔ مجھے اس بات پر بھی حیرت تھی کہ زرتاج نے ابھی تک یہ دریافت نہیں کیا تھا کہ راحیلہ کا چہرہ مضحکہ خیز کیوں کر ہوا تھا۔ اسے یہ اندازہ تو یقیناً ہو گیا تھا کہ اس کا چہرہ پیدائشی طور پر ایسا نہیں تھا۔ پیدائشی طور پر کسی کا چہرہ اتنی صفائی سے مکمل طور پر دو حصوں میں منقسم نظر آنا میرے خیال میں تو تقریباً ناممکن ہی تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اگر میں بیک وقت ان دونوں کے بارے میں سوچتا رہا تو میرا ذہن چل ہو جائے گا اور میں اپنا کوئی بھی کاروباری کام نہیں نپٹا سکوں گا۔ چنانچہ میں نے دونوں ہی کے تصور سے چھٹکارا حاصل کیا اور اپنے آپ کو فائلوں میں الجھانے لگا۔ مجھے کراچی میں مزید 2 ہفتے گزر گئے۔ اس دوران کہنے کو تو کوئی خاص واقعہ رونما نہیں ہوا، لیکن میرے اندر کا طوفان بدستور مجھے منتشر کرتا رہا۔ زرتاج ابھی کراچی ہی میں تھی اور میرے ہوٹل ہی میں مقیم تھی۔ وہ کہ اس نے ڈیفنس میں بنگلہ خرید لیا تھا اور خاصی اجلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ادائیگی بھی کر دی تھی، لیکن ابھی اس میں شفٹ نہیں ہوئی تھی۔ ابھی اسے اس کے شایان شان بنایا جا رہا تھا۔ انٹیریئر ڈیکوریشن کی ایک فرم اس کی تزائین و آرائش اور فریشننگ کا کام کر رہی تھی۔ کبھی کبھی زرتاج خود بھی جا کر کام کی نگرانی کرتی تھی اور سامان وغیرہ منتخب کرتی تھی۔ میری اس سے دن میں 2 یا 3 مرتبہ ملاقات رہتی تھی، لیکن پہلے دن کے بعد سے ہم کبھی جذبات کے خارزاروں میں نہیں الجھے تھے۔ ہم صرف اچھے دوستوں کی طرح ملتے تھے اور دل کے معاملے کے سوا دنیا کے ہر موضوع پر بات کرتے تھے۔ اصل موضوع کے سلسلے میں ہمارے درمیان گویا ایک بے عنوان سا تکلف، ایک مبہم سا حجاب آ گیا تھا۔ صرف پہلے دن کھل جانے کے بعد زرتاج گویا اپنی انا کے خول میں بند ہو گئی تھی، لیکن اس کا کراچی منتقل ہونے کا پروگرام نہیں بدلا تھا۔ اس دوران راحیلہ کا ذکر بھی صرف ایک ہی مرتبہ آیا تھا، وہ بھی اس طرح کہ زرتاج تجسس سے مجبور ہو کر آخرکار اس کے چہرے کے بارے میں سوال کر ہی بیٹھی تھی۔ میں نے اسے ساری بات بتا دی تھی۔ اس نے افسوس کا اظہار کیا تھا جو مجھے کسی حد تک رسمی ہی محسوس ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر کبھی راحیلہ کے بارے میں بات نہیں ہوئی تھی۔ راحیلہ سے میرا فون پر رابطہ رہتا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس نے بھی کراچی سے جانے کے بعد زرتاج کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ وہ کبھی مذاق میں بھی اس کا تذکرہ گفتگو میں نہیں لاتی تھی۔ اس نے میرے مکان کی تعمیر شروع کروا دی تھی۔ میری ہدایت پر اس نے کنسٹرکشن کمپنی سے کہہ کر بہت زیادہ آدمی لگوا کر کام شروع کروا رکھا تھا، کیونکہ میں مکان جلد مکمل کروانا چاہتا تھا۔ میرے جو ساتھی اسلام آباد میں تھے وہ بھی راحیلہ کے ساتھ لاہور پہنچ چکے تھے اور راحیلہ انہی کی مدد سے بزنس بھی سنبھالے ہوئی تھی۔ میں نے شفیع شاہ وغیرہ کو بھی جزیرے سے واپس بلا لیا تھا، کیونکہ انہیں جزیرے پر رکھنے کا اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں نے انہیں ڈاکٹر برنارڈ کی وجہ سے جزیرے پر چھوڑا تھا، لیکن کئی باتوں سے تصدیق ہو چکی تھی کہ وہ جزیرے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ ان تمام راستوں اور ذرائع آمد و رفت کی تو کڑی نگرانی ہو رہی تھی جن کے ذریعے وہ بیرون ملک فرار ہو سکتا تھا۔ ابھی تک کوئی ایسی شہادت نہیں ملی تھی جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس نے بیرون ملک فرار ہونے کی کوشش کی تھی۔ زیادہ امکان یہی تھا کہ ڈاکٹر برنارڈ کراچی میں موجود تھا، لیکن کراچی بجائے خود ایک سمندر تھا۔ اس میں ڈاکٹر برنارڈ جیسے فنکار کو تلاش کرنا کارِ دار تھا۔ اس معاملے میں تو قسمت کچھ زیادہ ہی مہربان ہوتی تبھی کوئی نتیجہ برآمد ہو سکتا تھا۔ بہرحال ہم اپنی کوشش کر رہے تھے۔ میرا چشتی صاحب سے بھی رابطہ رہتا تھا۔ اگر خفیہ اداروں کو ڈاکٹر برنارڈ کے سلسلے میں کوئی کامیابی ہوتی تو مجھے ضرور اطلاع مل جاتی۔ امبر تقریباً 2 ہفتے سے میری سیکٹری کے فرائض انجام دے رہی تھی اور اس حیثیت سے کام کرنے کا تجربہ نہ ہونے کے باوجود وہ بہت اچھی سیکٹری ثابت ہوئی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو بہت ہی احسان مند محسوس کر رہی تھی اور اب اسے نئے سرے سے ایک اچھے باعزت انداز میں زندگی شروع کرنے کا موقع ملا تھا اور وہ اسے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کوئی بری یا بے راہ رو لڑکی نہیں تھی، لیکن ماضی میں اس نے ملازمت کی جگہ وہاں کے ماحول اور قریبی ساتھیوں کے انتخابات میں زیادہ احتیاط نہیں کی تھی، جس پر اسے پچھتاوا تھا، اور یہ اس بات کی دلیل تھی کہ اندر سے وہ بہرحال ایک اچھی لڑکی تھی۔ میں نے اسے جو بھی ذمہ داریاں سونپی تھی وہ اپنے آپ کو ان کا اہل ثابت کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، بلکہ وہ ان نایاب قسم کے ملازمین میں سے ایک ثابت ہو رہی تھی جو ہر ذمہ داری اپنے سر لینے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور ان کی پوسٹ خواہ کچھ بھی ہو لیکن وہ نہایت جوش و خروش سے ہر کام کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔
वो इतनी मुस्तैद थी कि कभी कभी उसकी मुस्तैदी देख कर मुझे शर्मिंदगी होने लगती थी। चुनाचे उस रोज जब वो मुसरबाना अंदाज में हाथ मलती हुई मेरे ऑफिस में दाखिल हुई तो मुझे यही समझा कि वो फरमाइश करेगी, सर कि मुझे कोई और काम बताइए। सेक्रेटरी की मसरूफियात तो कोई मसरूफियात ही नहीं है, ये तो महज एक नुमाइशी सी जॉब है। बाज़ दफातर में वाकई सेक्रेटरी की जॉब नुमाइशी ही सी होती है, लेकिन मेरे दफ्तर में काम बहुत ज्यादा था क्योंकि मैं अपने दूसरे बिजनेस को भी फिलहाल होटल वाले ऑफिस से ही हैंडल कर रहा था। मेरी मसरूफियात बढ़ती थी तो उससे ज्यादा अंबर की मसरूफियत बढ़ जाती थी। उसके बावजूद उसे काम की कमी का शिकवा रहता था। मैं संभल कर बैठ गया और उसके कुछ कहने से पहले ही उसके लिए कोई काम सोचने लगा जिसमें उसे मसरूफ रखा जा सके। मैं फौरी तौर पर उसके लिए कोई काम न सोच सका। शायद उसकी एक वजह यह भी थी कि मेरी नज़र उसके सरापा में उलझ कर रह गई थी। मुझे सही मानों में आज पहली बार एहसास हुआ था कि वो एक स्मार्ट और खूबसूरत लड़की थी। मुझे नहीं मालूम था कि उसके घरेलू हालात क्या थे, लेकिन ये तो बहरहाल तय था कि उसका ताल्लुक निचले मुतवस्सित तबके से था। लेकिन कदरे हैरत की बात यह थी कि वो शख्सियत के एतबार से निचले मुतवस्सित तबके की लड़की नहीं लगती थी। उसके सरापा, उसके वज़ाकता और पहनावे में एक टच ऑफ क्लास मौजूद था। मैं इन्हीं बातों में उलझा हुआ था। सर, मैं आपके पास एक दरख्वास्त लेकर आई हूँ। मैं अंबर की आवाज़ सुनकर अपने ख्यालात से चौंका। मैंने महसूस किया कि आज अंबर का लहजा मुख्तलिफ था। वो बहुत हिचकिचा रही थी। शायद वो मजीद काम की फरमाइश करने नहीं बल्कि कुछ और कहने आई थी। मैंने तवील सांस लेकर टाई की गिरद दुरुस्त करते हुए सरसरी से लहजे में पूछा, कोई माली मसला है? नहीं सर, नहीं। वो गया कदर शर्मिंदा होते हुए जल्दी से अंग्रेजी में बोली, मेरे माली हालात इतने बुरे नहीं हैं और फिर मुझे एक हफ्ते भी बेरोजगार नहीं रहना पड़ा। तो फिर क्या मसला है? मैं कुछ और संभल कर बैठ गया। सर, मेरी आपसे कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही। वो हाथ मलते हुए बोली, मसला कति ज़ाती सा है और है भी किसी और का, लेकिन आप उसे मेरा ही समझ लीजिए। मैंने जज्बात में आकर किसी से वादा कर लिया है कि मैं आपसे उसकी मदद की दरख्वास्त करूंगी, लेकिन अब मुझे ख्याल आ रहा है आप जैसा यकीनन सोचेंगे कि अभी तो आपने मेरे लिए इतना दर्द सर मोल लिया था, मेरी इतनी मदद की थी, अब दूसरों की सिफारिश भी लेकर मैं आने लगी हूँ। कहीं आप ये ना सोचें कि मैं आपकी मेहरबान तबीयत से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही हूँ, या कहीं मैं आपके लिए मुस्तकिल दर्द सर ही न बन जाऊँ। उसकी आवाज़ गले में अटकने लगी। लेकिन ये वाकई किसी मुसीबत ज़दा का मामला है। मैं उसे उम्मीद दिलाए बगैर नहीं रह सकी। भाई, तुमने तो बहुत सस्पेंस पैदा कर दिया है। पहले मालूम तो हो कि मसला क्या है, तभी तो मैं कोई जवाब दे सकता हूँ। आप चाहें तो इस मसले में ज़रूर कुछ कर सकते हैं सर। मुझे एहसास है कि आप एक मसरूफ़ आदमी हैं, बड़े आदमी हैं, लेकिन नेकियां कमाने की ज़रूरत तो बड़े आदमियों को भी पड़ती है सर। भाई, तुम रस्मी बातें छोड़ो और असल बात करो। मैंने मुलाहिमत से कहा, सर, मैंने आपको बताया था कि हमें कराची आए हुए काफ़ी अरसा हो गया है, लेकिन असल में हमारी फैमिली सक्खर की रहने वाली थी। वो जल्दी से बोली, हाँ मुझे याद पड़ता है, तुमने ऐसी कोई बात की थी। मैंने कहा, सर, वहाँ मोहल्ले में रहने वाली एक फैमिली से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। यहाँ आने के बाद तो रफ्ता रफ्ता उनसे राब्ता टूट गया। एक अरसे बाद उस घर की एक लड़की से मुलाकात हुई है जो मेरी सहेली हुआ करती थी। उसकी छोटी बहन कुछ अरसा पहले मुलाजमत के सिलसिले में कराची आई थी, लेकिन वो इंसानों के इस जंगल में खो गई है। उसे तलाश करने की हर कोशिश नाकाम हो चुकी है। मेरी सहेली खुद भी उसे तलाश करके थक चुकी है। उनके वालिद तो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी सहेली ही गोया अपनी बहन की सरपरस्त थी। वो बहुत परेशान है सर। उसे आप जैसे किसी शख्स की मदद की जरूरत है। तुम्हारी इस सहेली का नाम क्या है? तुम उसे अंदर भेज दो, मैं उससे बात करने के बाद कोई फैसला करूंगा। मैंने कहा, बहुत बेहतर सर। वो यकदम पूरा उम्मीद नजर आने लगी और तेजी से घूमकर कमरे से निकल गई। उसकी कमर में शाखे गुल की सी लचक थी जो आज मैंने पहली बार महसूस की थी। वो जा चुकी तो मैं अपने सामने मौजूद फाइलें बंद करने लगा और कुछ बिखरे हुए कागजात समेटने लगा। चलने में बाद जो लड़की कमरे में दाखिल हुई उसे देखकर मुझे हैरत का हल्का सा झटका लगा। शायद लाशऊरी तौर पर मैंने फर्ज कर लिया था कि अंबर की दोस्त भी कुछ उसी जैसी होगी, लेकिन वो मेरे अंदाजे से बहुत मुख्तलिफ थी। वो एक दुबली पतली लंबी सी लड़की थी जिसके वजूद में हड्डियां ही हड्डियां नुमाया थी। चेहरे पर भी हड्डियां नजर आ रही थी। रुखसारों की हड्डियां उभरी हुई थी। नाक की हड्डी बहुत तीखी और नुमाया थी और उस हड्डी पर नाजुक फ्रेम का चश्मा टिका हुआ था। उसकी उम्र 30 साल भी हो सकती थी और 40 साल भी। इस सिलसिले में यकीन से कुछ कहना बहुत मुश्किल था। वह मामूली मगर साफ सुथरी शलवार कमीज और दुपट्टे में थी। वो इजाजत पाकर अंदर आई तो उसके साथ सस्ती सी खुशबू का एक झोंका भी अंदर आया। बेशक उसकी शख्सियत में कोई कशिश नहीं थी, लेकिन वो बेहद गोरी थी और उसे देखकर साफ सुथरेपन का एहसास सा होता था और किसी उस्तानी ही का तस्वुर जहन में उभरता था। गो के छोटे और पेशमानदा बड़े शहरों की बेशतर उस्तानियों और उस्तादों की शख्सियत बदकिस्मती से मैली मैली नजर आती थी। वो सलाम करने के बाद मेरा इशारा पाकर हिचकिचाते हुए सामने की एक कुर्सी पर बैठ गई। वो यकीनन नर्वस थे क्योंकि वो अपना हैंड बैग गोद में रखने के बाद उसका खटका कभी खोल रही थी और कभी बंद कर रही थी। उसका चेहरा मेकअप से आरी था, उसके बावजूद उसके होंठ भरे भरे और खूबसूरत दिखाई दे रहे थे। क्या मसला है? मैंने मुलाहिमत से पूछा। ऐनक की शीशों के अक में उसकी फैली फैली सी आंखों में यकदम ही आंसू छलक आए। उसने जल्दी से चश्मा उतार कर मेज पर रख दिया और गालबन रुमाल की तलाश में कांपते हाथों से जल्दी से अपना हैंड बैग खोलने लगी।
मैंने टिश्यू पेपर का डिब्बा उसकी तरफ बढ़ाया। उसने बैक वक्त 2 टिश्यू पेपर निकाले और इसमें मुंह छुपाकर बाकायदा रोने लगी। मैं चंद लम्हे खामोश बैठा रहा। एक अजनबी औरत का रोना इंसान को बड़ी उलझन में डाल देता है। अचानक मैंने दृष्ट लहजे में कहा, यह क्या बकवास है, बंद करो ये रोना धोना। उसे यकदम जोरदार झटका लगा। उसने टिश्यू पेपर से आंखें साफ की और बेयकीनी से मेरी तरफ देखा। उसकी फैली फैली आंखें कुछ और फैल गई थी। जिस तरह अचानक उसके आंसू बहना शुरू हुए थे, उसी तरह अचानक थम भी गए। मैंने फौरन अपने तासरात बदल लिए और मोहब्बत से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अब ठीक है। दरअसल मुझे तुम्हारे आंसू रोकने का कोई और तरीका कारगर सूझ नहीं रहा था। तुम्हारे आंसू रोकना इसलिए जरूरी था कि आंसू बहाने से तुम्हारे मसले के हल में कोई मदद नहीं मिलेगी। हाँ तो मसला क्या है? तुम्हारी बहन गुम हो गई है। हाँ, उसने हैंड बैग मेज पर रखते हुए जवाब दिया। उसके फीके फीके सफेद से चेहरे पर हल्की सी सुर्खी नमूदार हो चुकी थी। गोया उसकी शख्सियत में भी कुछ रंग आ गया था। पूरा चेहरा टिश्यू पेपर से पूछने के बाद वो मुर्ताहिश लहजे में बोली, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। चंद लम्हे की खामोशी के बाद उसने अपने आप पर काबू पा लिया और काफी हद तक पुरस्कून लहजे में बोली, मेरी बहन का नाम मैमूना है। घर में हम उसे प्यार से मोना कहते हैं। वो मुझसे 4 साल छोटी है। मैं अब भी ना पूछ सका कि उसकी अपनी उम्र क्या थी। वो बात जारी रखते हुए बोली, 6 माह से मोना का कुछ पता नहीं है। पहले वो मुझे और अम्मी को हर हफ्ते खत लिखती थी, लेकिन फिर सिरे से ही उसके खत आने बंद हो गए। जब 6 माह तक उसका कोई खत ना आया तो मैं उसका आता पता करने यहाँ आई। उसके खतों से हमें ये इल्म था कि यहाँ वो किसी बेवा खातून के यहाँ रहती थी, जिन्होंने अपने मकान को हॉस्टल की सी शक्ल दे रखी थी। वो सिर्फ तनहा और मुलाजमत पेशा लड़कियों को कमरे किराए पर देती थी। वो एक बार फिर खामोश हो गई। उसका सर झुक गया। ऐनक उठाकर उसने दोबारा नाक पर टिका दी। ऐनक के साथ उसकी शख्सियत कुछ बेहतर लगती थी। एक लम्हे की खामोशी के बाद वो सर उठाते हुए बोली, मैं उस एड्रेस पर पहुंची तो न जाने क्यों मुझे धचका सा लगा। मेरे जहन में उस जगह का एक अलग ही नक्शा था, लेकिन वो मुझे अपने तसव्वुर से कतई मुख्तलिफ लगी। मेरा ख्याल था कि वो किसी साफ सुथरे इलाके में साफ सुथरा सा मकान होगा, जिसमें छोटे छोटे साफ सुथरे बहुत से कमरे होंगे। उसकी मालकन एक नेक दिल और हमदर्द किस्म की खातून होगी, जिन्हें अंदाजा होगा कि बड़े शहरों में आकर मुलाजमत या कुछ छोटा मोटा काम करने वाली खवातीन के क्या मसाइल होते हैं। शायद इसीलिए उन्होंने अपना मकान इस किस्म की खवातीन के लिए मखसूस कर दिया था। वो खुद शायद एक कोने में तख्त पर मुसल्ला बिछाए नमाज वगैरह में मसरूफ रहती होंगी। उसकी आवाज़ धीमी होते हुए मालूम होगी। उसने दुपट्टा खींचकर अपने छानों पर फैला लिया। मुझे उसकी कहानी में दिलचस्पी महसूस होने लगी। मैं अपनी मसरूफियात भूल गया था। वो एक लम्हे खामोश रही तो मैंने कहा, वहां पहुंचकर तुम्हारे तसव्वुरात को कुछ ज्यादा ही शदीद धचका लगा। जी हाँ, वही खिजाते हुए बोली। वो एक बहुत ही वाहियात से इलाके में वाहियात सा मकान था। मकान तो 3-4 मंजिला था, लेकिन उसके कमरे डरबों की तरह थे। मकान मालकन भी वाहियात सी औरत थी, मोटी भैंस जैसी, करख्त और बदमिजाज। किसी बात का सीधे मुंह जवाब ही नहीं दे रही थी। उसने बताया कि मोना उसके हाथ से कमरा छोड़कर जा चुकी थी। मैंने पूछा कि कहाँ गई थी, तो उसने बरहमी से जवाब दिया कि उसे कुछ पता नहीं था और ना ही वो जाने वालियों का अता पता रखती थी। उसके असल अल्फाज ये थे कि मैं उसकी बाग की नौकर नहीं हूँ कि उनके जाने के बाद भी उनके पीछे पीछे फिरूं और उनके बारे में मालूमात हासिल करूं। जो चली गई सो चली गई, मेरी तरफ से वो भाड़ में जाए। मैंने फिर भी हिम्मत करके उसे पूछने की कोशिश की कि मोना को गए हुए कितना अरसा हो गया था, लेकिन उसने जवाब देने के बजाय मुझे सेहन से धकेल कर बाहर निकाला और धड़ से दरवाजा बंद कर दिया। अजीब औरत थी। मैं तो उसकी बदइखलाकी पर हैरान रह गई। फिर उसका लहजा इल्तिजाइया हो गया। आपको मेरी मदद करना होगी अफसल साहब। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरह अम्मी के पास वापस जाऊं। वो तो ये सब कुछ सुनकर परेशान हो जाएंगी। अब ऐसी भी क्या बात है, उन्हें इतनी जल्दी तो परेशान नहीं होना चाहिए। मैंने बड़ी मिठास से कहा। क्या मतलब? वो जरा चौंक कर बोली। मतलब यह कि अभी तो मोना के खतों का सिलसिला मुनक़ता हुए सिर्फ 6 माह हुए हैं। अभी से तुम्हारी माँ को परेशान होने की क्या जरूरत है? एक माँ को इतनी जल्दी तो परेशान होना ही नहीं चाहिए। मैंने मुलायमत से कहा। वो मेरे तंज को समझते हुए मुर्तज़ लहजे में बोली, मैं आपको क्या बताऊं अफसल साहब, हम माँ बेटी वहाँ किस हाल में जिंदगी गुजार रही हैं। हमारे अपने कुछ मसाइल हैं। अम्मी मुस्तकिल मरीज़ा हैं। बाज़-औक़ात वो इतनी तकलीफ में होती हैं कि अपनी औलाद तक के बारे में सोचने के काबिल नहीं होती। मेरे लिए भी उनकी वजह से घर से निकलना मुश्किल था और फिर मेरे अपने मुलाजमत के भी कुछ मसाइल हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी बात ये कि हम मोना को ज़्यादा बेहतर जानते हैं। उसका हमें खत लिखना बंद कर देना काफ़ी अरसे तक हमारी हैरत या तशवीश का बायस नहीं बन सका था। मोना दरअसल नहायत मूडी और लाउबाली किस्म की लड़की है। वो खत लिखने पर आए तो हफ्ते में क्या रोजाना भी किसी को खत लिख सकती है, और लिखना छोड़ दे तो महीनों किसी को एक सतर भी लिख कर ना भेजे। सिर्फ खतों में ही नहीं, जिंदगी के तकरीबन सभी मामलात में उसका यही हाल है। इसलिए हम उसकी तरफ से ज्यादा परेशान नहीं हुए थे। मैं एक लम्हे के लिए खामोश रहा। उस खामोशी में हल्की सी मुआज़रत ख्वाही का तासुर था। फिर मैंने कहा, अगर तुम मुझे किसी हद तक अपने पसे मंजर से भी आगाह कर दो तो बेहतर होगा। कुछ अपने बारे में, घर के बारे में, वालदैन के बारे में बताओ, और अगर मोना के बारे में मजीद कुछ बता सको तो बेहतर होगा। उसने अपने खूबसूरत होंठों पर जुबान फेरी। शायद उसका मुंह खुश्क हो रहा था। तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे थोड़ा बहुत आदाब मेज़बानी का भी ख्याल रखना चाहिए था। अंबर और अजरा जैसी लड़कियां तो इस होटल में बैठकर अपनी जेब से कुछ खाने पीने का तसव्वुर भी मुश्किल से कर सकती थी।
मैंने इंटरकॉम पर अंबर को ही उसके लिए कोल्ड ड्रिंक्स और कुछ स्नैक्स वगैरह का इंतजाम करने की हदायत की। रस्मी इनकार के बाद वो सिलसिला कलाम जोड़ते हुए बोली, हमारे वालिद का कई साल पहले कैंसर के मर्ज में इंतकाल हो गया था। हमारा कोई भाई वगैरह नहीं है। वालिदा ने मुख्तलिफ काम काज करके घर चलाया और कोशिश की कि हम दोनों बहनें तालीम जारी रखें। मैंने इंटर के बाद भी तालीम जारी रखी, बीए किया, बीएड किया, लेकिन मोना इंटर भी नहीं कर सकी। उसे तालीम से पहले भी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। अब्बा के इंतकाल के बाद उसका बिल्कुल ही दिल उचाट हो गया था। वो कहा करती थी, हम जैसे घरानों की लड़कियों को तो ज्यादा तालीम हासिल करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि तालीम हासिल करने के बाद हमें चूल्हा ही झोंकना होता है, इसलिए पढ़ने का क्या फायदा। लेकिन शायद ये एक राह फरार थी। असल में वो एक बेचैन रूह है। वो कोई लंबी उड़ान उड़ना चाहती थी। हमेशा से उसके ख्वाब ऊंचे थे। ओह, मैं एक तवील सांस लेकर रह गया। ऐसे कई अलमिया मेरे इल्म में थे जब गरीब घरानों की लड़कियों ने ऊंची उड़ान के चौक में बाल ऊपर कटवा दिए। अजरा बात जारी रखती हुई बोली, आखिरकार मोना हमारे रिश्ते के एक चचा अनायत साहब के पास हैदराबाद चली गई। अनायत चचा एक तरह के जगत चचा थे। सभी उन्हें अंकल अनायत कहते थे। अच्छी भली उम्र के लोग भी उन्हें इस तरह पुकारते थे, हालांकि वो खुद कोई ऐसे उम्र रसीदा नहीं थे। वो रंडबे और लावल थे। उन्होंने दूसरी शादी नहीं की थी। वो अच्छे खासे दौलतमंद आदमी थे। मोना दर हकीकत उसी चक्कर में उनके पास गई थी कि उनकी थोड़ी बहुत खिदमत करेगी। शायद वो अपनी सारी या कम अज कम आधी पौनी दौलत है उसके नाम कर दी। हालांकि खानदान के 2-3 लड़के भी पहले उस चक्कर में अंकल अनायत के पास जा चुके थे और थोड़ा थोड़ा अरसा रहकर मुंह की खाकर वापस आ चुके थे। अंकल अनायत भी एक ही घाघ और काया आदमी थे। वो परों पर पानी ही नहीं पड़ने देते थे। कुछ नहीं कहा जा सकता था कि उन्होंने अपनी दौलत के बारे में क्या सोचा हुआ था। वैसे भी अभी वो हट्टे कट्टे थे, कारोबार कर रहे थे, दुनिया की सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे थे। मोना को उम्मीद थी कि एक लड़की होने के नाते वो उनकी ज्यादा खिदमत कर सकेगी और सही मानों में उनके दिल में घर कर सकेगी। वो पढ़ने के बहाने उनके यहाँ रहने लगी। उसने खामोश होकर नजरें झुका ली। शायद वो किसी सोच में उलझ गई थी। मैंने कुन अखियों से घड़ी देखी, ताहम कुछ कहे बगैर उसके बोलने का मुंतजिर रहा। एक लम्हे बाद उसने सिलसिला कलाम जोड़ा। तकरीबन 1.5 साल अंकल अनायत के यहाँ गुजार कर वो वापस आ गई। यह सबसे तवील अरसा था जो किसी करीबी रिश्तेदार ने अंकल अनायत के यहाँ गुजारा था। मोना बहुत नाखुश वापस आई थी। उसने खुलकर तो मुझे भी नहीं बताया, लेकिन लगता यही था कि उसकी तवक्कुआत पूरी नहीं हुई थी और वो अंकल अनायत को नाराज करके आई थी, क्योंकि उसके बाद कभी हमारे यहाँ अंकल अनायत का कोई खत वगैरह नहीं आया। खत तो पहले भी उनका शादो नादर ही आता था, लेकिन मोना के उनके यहाँ कयाम के दौरान चंद खत आए थे। मोना कुछ अरसा घर रही, फिर उसने अम्मी की तमाम तर मुखालफत के बावजूद कराची के लिए रखते सफर बांध लिया। वो अपनी जिंदगी बनाकर दिखाने और कुछ कर गुजरने के लिए लड़कों की तरह बेचैन थी और हौसला इसमें लड़कों से भी ज्यादा था। वो मेरे और अम्मी के मना करने के बावजूद कराची आ गई। ये कब की बात है? मैंने पूछा। तकरीबन 1.5 साल पहले की, अजरा ने जवाब दिया। फिर क्या हुआ? मोना हमें खत लिखती रही। लगता यही था कि उसे इस बड़े और अजनबी शहर में सेटल होने में कोई दुश्वारी नहीं हुई थी। उसके खतूत से जिंदा दिली झलकती थी। उसने लिखा था कि उसे एक फर्म में नौकरी मिल गई थी, लेकिन कभी फर्म का नाम वगैरह नहीं लिखा। फिर वो थोड़े से पैसे भी भेजने लगी। मैं भी काफी अरसा से टीचर के तौर पर जॉब करने लगी थी। शायद घर के हालात कुछ बेहतर हो जाते, लेकिन उसी दौरान अम्मी काफी बीमार रहने लगी। उनके इलाज मुआवजे का काफी खर्च था और मसाइल भी दरपेश रहते थे, लेकिन जिंदगी की गाड़ी बहरहाल किसी न किसी तरह घिसट रही थी। इस दौरान मोना ने खत लिखा। वो मॉडलिंग में भी कुछ मकाम बनाने की कोशिश कर रही थी। उसने हमें एक रिसाला भी भेजा जो हमने उससे पहले कभी नहीं देखा था। उसमें उसकी रंगीन तस्वीरें छपी हुई थी। अम्मी वो तस्वीरें देखकर खुश होने के बजाय रोती रही, क्योंकि उन्होंने इस किस्म के कामों को कभी पसंद नहीं किया था। लेकिन जिस तरह बाज घरों के लड़के वालिदैन के काबू में नहीं रहते, सरकश हो जाते हैं, माँ बाप का कहना नहीं मानते, इसी तरह मोना भी हमारे हाथ से निकल गई थी। और फिर हमारा तो बाप भी नहीं था। हमने रसाला फाड़ कर फेंक दिया। हमने मोना को तकरीबन उसके हाल पर छोड़ दिया था, लेकिन आंखें बंद कर लेने से बहरहाल रिश्ते खत्म नहीं हो जाते। हम उसे यूं तो नहीं छोड़ सकते, उससे लाताल्लुक तो नहीं हो सकते। 6 माह से उसका कोई खत नहीं आया, तो आखिर परेशान होकर मुझे कराची आना पड़ा। उसके खत आना एकदम ही बंद हो गए। ऐसा नहीं हुआ कि रफ्ता रफ्ता खतों के दरमियान वक्फा पड़ता गया और आखिरकार सिलसिला मुनक़ता हो गया। मैंने दरियाफ्त किया, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। खतूत आने यकदम ही बंद हो गए। अजरा ने जरा सा सर ऊंचा करते हुए कहा, आखिरकार मुझे यहाँ आना पड़ा, लेकिन यहाँ आकर भी उसका कुछ पता नहीं चला। उसका आता पता करने के लिए तुमने पूरे 6 माह इंतजार किया। मेरे लहजे में गैर इरादी तौर पर हल्की सी तलखी आ गई। मैंने बताया ना कि हमारी कुछ मजबूरियां थी। उसकी आवाज एक बार फिर से रुंधने लगी। मैंने जल्दी से कहा, खैर कोई बात नहीं। ये बताओ, जब तुम इस जगह गई जहाँ मोना मुकीम थी और जिस पते पर तुम उसे खत लिखती थी, तो वो जगह तुम्हें सिर्फ वाहियात ही लगी या उस पर किसी किस्म का शक भी हुआ? बस मुझे वो जगह कुछ ठीक नहीं लगी अफसल साहब। वो कुछ बेबसी से बोली। मैं कुछ सही तरह अपना तासुर बयान नहीं कर सकती। मैंने बहुत महदूद और सीधे साधे से अंदाज में जिंदगी गुजारी है।
किसी बड़े शहर में क़याम करने और इधर उधर मारे मारे फिरने का मुझे पहली बार इत्तेफाक हुआ है। तुम ठहरी कहाँ हो? मैं दरियाफ्त किया। अंबर के पास, उसने जवाब दिया। यूँ तो यहाँ हमारे कई जानने वाले मौजूद हैं, लेकिन मैंने सिर्फ अंबर को तकलीफ दी। वो समझदार भी है और ज़रा तेज़ तरार भी। उसकी सबसे अच्छी आदत यह है कि वो मुझ जैसे शनासाओं और पुराने ताल्लुकदारों का काम करने की पूरी कोशिश करती है। पुराने जानने वालों से कभी मुंह नहीं फेरती। उसी ने आपका जिक्र किया, बड़ी तारीफें की कि आप बड़ी बाकमाल शख्सियत हैं। आपकी रसाई भी बहुत ऊपर तक है और आप सीने में एक दर्दमंद दिल भी रखते हैं। उसका कहना था कि अगर आपने चाहा तो चुटकी बजाते ही ये मसला हल हो जाएगा और मोना का पता चल जाएगा। खैर ऐसी भी बात नहीं है। अंबर ने शायद मुझे तुम्हारे सामने कुछ ज्यादा ही मोजज़ाती किस्म की शख्सियत बनाकर पेश किया है। हकीकत यही है कि ये शहर इंसानों का एक जंगल है, दो चार नहीं बल्कि अनगिनत फूल फलियों का मजमुआ है। यहाँ अगर कोई छुपना चाहे और वो ऊपर से कुछ चालाक या शातिर भी हो तो फिर शायद किस्मत ही आपको दोबारा उससे मिलवाए। मैं और मुझ जैसे न जाने कितने दूसरे लोग जो किसी का सुराग लगाने में खास तौर पर माहिर हैं, खुद कई दिन से एक शख्स को तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला। इसलिए तुम मुझसे किसी मुआवजे की तवक्को मत रखना। मैंने गोया उसकी खुशफहमी दूर करने की कोशिश की। मेरे ख्याल में तो बेहतर यही था कि तुम पुलिस से रजू करती। तुम पुलिस के पास क्यों नहीं गई? पुलिस? उसने थूक निकल कर यूं मजरूह सी नजरों से मेरी तरफ देखा। गोया इस सवाल से उसे काफी सदमा पहुंचा हो। ये लड़की का मामला है अफजल साहब, और हम इज्जतदार लोग हैं। मालूम नहीं अंदर से क्या कहानी निकल आए। यहाँ पुलिस का हाथ बीच में आ जाने के बाद न जाने क्या कहानी बन जाए। उसने झुरझुरी सी ली। मोना के बारे में भी कोई दावा नहीं है, उसके बारे में यकीन से कोई बात नहीं कही जा सकती। नहीं अफजल साहब, मैं पुलिस के पास जाने का रिस्क नहीं ले सकती। आपको ही मेरी मदद करना होगी। मैं तो पहले ही सोच कर आई थी कि अगर मुझे मोना को तलाश करने में किसी की मदद भी लेना पड़ी तो पुलिस की मदद हरगिज नहीं लूंगी। किसी और की मदद हासिल करने की कोशिश करूंगी, खा उसमें मुझे रकम भी खर्च करनी पड़ी। ये देखिए, मैं तो रकम का भी बंदोबस्त करके आई थी। उसने हैंड बैग से पुराने नोटों की 3 घड़ियां निकालकर मुझे दिखाई, जिन पर रबर बैंड चढ़े हुए थे। वो गालबन 15,000 रुपए की रकम थी। घड़ियां उसके मरमरी इस्तखानी हाथों में लर्ज नहीं थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचारगी थी। मुझे अपने दिल की किसी गोशे में खटक सी महसूस हुई। उस लम्हे मुझे उस पर बड़ा तरस आया। मेरे लिए अंदाजा करना मुश्किल नहीं था कि उन माँ बेटी ने यह रकम जमा करने के लिए क्या जतन किए होंगे। उसे खुद भी मेरे अंदाजे की तस्दीक करती और धीमी आवाज़ में बोली, मेरा ख्याल है मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि 18,000 की यह रकम इकट्ठी करने के लिए हमें क्या कुछ बेचना पड़ा और किन जरूरियात का गला घोंटना पड़ा। उसके बावजूद मैं आंखें बंद करके ये रकम किसी भी ऐसे शख्स की खिदमत में पेश करने के लिए तैयार थी जो मोना की तलाश के सिलसिले में बाकी मेरी कोई मदद कर सकता। लेकिन आप बड़े आदमी हैं, आपसे तो मैं इस तरह की भी कोई बात नहीं कर सकती। मैं मुस्कुरा दिया। उसने रकम वापस हैंड बैग में रख दी। मैंने मुलायमे से कहा, जरा मैं तुमसे मुआवजा चाहूँगा। मैं एक मसरूफ़ आदमी हूँ और आजकल खुद मुझे कुछ ऐसी उलझने दरपेश हैं जिनका मैं कोई हल तलाश नहीं कर पा रहा। इनमें कुछ निजी उलझने भी शामिल हैं। उसके चेहरे पर मायूसी की तारीकी फैलती देखकर मैंने जल्दी से कहा, लेकिन तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं। मेरे अपने कुछ खास आदमी हैं जो इस काम में तुम्हारी पूरी मदद कर सकते हैं और बेलौस तरीके से तुम्हारे लिए हर कोशिश कर सकते हैं। तुम चाहो तो यह काम पुलिस के जरिए भी हो सकता है। पुलिस में भी मेरा कम अज कम इतना असर रसूख जरूर है कि यह काम इस तरह नहीं होगा जिस तरह तुम सोच रही हो। तुम्हें पुलिस के रवायती तौर तरीकों से जो अंदेशे हैं वो हकीकत का रूप नहीं धारेंगे। मुझे वैसे भी उम्मीद है कि वो मुहज्जब और हमदर्द इंसानों की तरह इस मसले को हैंडल करेंगे, लेकिन मैं ऊपर से कहलवा दूंगा, फिर तो बहुत ही फर्क पड़ जाएगा। मैं अपनी दानिश में उसके साथ जितनी हमदर्दी कर सकता था कर रहा था, लेकिन यह देखकर मेरे ओसान खता हो गए कि उसकी वहशत ज़दा सी आंखों में एक बार फिर आंसू छिलमिलाने लगे थे। वो बैठी बैठी सी आवाज़ में बोली, मैं तो आपके पास आई हूँ अफसल साहब, पहले तो आप ही कुछ कीजिए। अब मैं किसी और सहारे पर तकिया करना नहीं चाहती। मैंने तो बस आपके सामने हाथ फैलाया है, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। वो दाएं बाएं झुक कर देखने लगी, शायद मेरे पाँव तलाश कर रही थी जो बड़ी सी भारी भरकम मेज़ के अक में छुपे हुए थे, क्योंकि उस वक्त मैं जहां और जिस तरह बैठा था मेरे पाँव पड़ना अमली तौर पर एक मुश्किल काम था, लेकिन अजरा से कुछ बाइद नहीं था कि वो हर हाल में ये काम कर गुजरती। इसलिए मैंने जल्दी से जरा सख्त लहजे में कहा, मुझे ये पाँव पड़ना, हाथ फैलाना, गिड़गिड़ाना, इल्तिजा करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई इंसान मेरे सामने ये सब करे, लेकिन हमारे मुल्क में तो ज्यादातर बड़े लोगों को ये सब कुछ अच्छा लगता है सर। वो बज़ाहिर सादगी से बोली, बड़े तो बड़े हमारे यहाँ तो छोटे छोटे लोग भी चाहते हैं कि दूसरे उनके सामने गिड़गिड़ाएं, रोएं, इल्तिजाएं करें, किसी न किसी चीज़ की भीख मांगें। वो बड़े लोग नहीं कमीने और पालशी हैं, वो बड़े लोग नहीं इंतहाई कमीने और घटिया लोग हैं। मैंने बिला तामुल कहा, मैं अगर कोई काम करने की पोजीशन में हूँ तो इन सब बातों के बगैर भी वो काम कर दूंगा। मेरे हालात ही किसी काम की इजाज़त ना देते हो तो भला। सर, आप जैसे लोगों के लिए किसी भी किस्म के हालात में छोटे मोटे कामों की गुंजाइश निकालना ज़्यादा मुश्किल नहीं। अब आपसे मिलने के बाद मैं कहीं और नहीं जाऊंगी।
اگر آپ نے خود مونا کی تلاش میں دلچسپی لینے کی حامی نہ بھری تو میں خاموشی سے گھر واپس چلی جاؤں گی اور ہم ماں بیٹی اسے تقدیر کا لکھا سمجھ کر برداشت کرنے کی کوشش کریں گے، یا پھر انتظار کے سہارے زندہ رہنے کی کوشش کریں گے کہ شاید کسی معجزے کے تحت مونا واپس آ جائے۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر جھلکنے لگی۔ دو چشمہ اتار کر نیا ٹیشو پیپر سنبھالا تو میں نے جلدی سے کہا، مونا کس قسم کی لڑکی ہے؟ میرا مطلب ہے اس کی شکل و صورت، قد کاٹ، رنگت وغیرہ۔ اسے گویا ایک نئی امید نے سہارا دیا اور آنکھیں پوچھتے پوچھتے اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ یہ آنسوؤں میں بھیگی مسکراہٹ تھی۔ اس کی آنکھوں میں شاید بہن کی تصویر ابھر آئی تھی۔ اس کے چہرے پر بے پناہ پیار جھلک آیا۔ بہن کے تصور کے ساتھ ہی اس کے تاثرات بدل گئے تھے۔ میرے لیے ایک عجیب نظارہ تھا۔ آج کے دور میں ایسے بہن بھائیوں کا دم غنیمت تھا جو اپنے بہن بھائیوں کے لیے اتنا تردد کر سکتے تھے، اتنی محبت سے ان کے بارے میں سوچ سکتے تھے۔ وہ بہت پیاری ہے، وہ دوبارہ چشمہ لگاتے ہوئے بولی۔ اس کا دوپٹہ اس کی گود میں ڈھلک آیا تھا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ اس کے جسم میں اتنی بھی ہڈیاں نہیں تھیں جتنی میں سمجھ رہا تھا۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولی، لمبی تو وہ مجھ جتنی ہی ہے، یعنی اس کا شمار دراز لڑکیوں میں ہوتا ہے، لیکن اس کے بال بھورے، گھنگریالے اور چمکیلے ہیں۔ میرے بالوں کی طرح سیاہ اور روکھے پھیکے نہیں ہیں، اور وہ میری طرح بے کشش سی شخصیت کے مالک نہیں ہے۔ مجھے دل ہی دل میں اسے داد دینا پڑی، گویا وہ اپنے بارے میں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں تھی۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بارے میں خوش فہم نہیں ہوتے۔ وہ شاید اپنے آپ کو کچھ انڈر ایسٹیمیٹ ہی کر رہی تھی۔ اب جب کہ اسے میرے سامنے بیٹھے خاصی دیر ہو گئی تھی تو میں محسوس کر رہا تھا کہ کچھ ایسی بے کشش بھی نہیں تھی جیسی پہلی نظر میں لگی تھی۔ بعض لوگ بجلی کے کوندے کی طرح ہوتے ہیں، آپ کی ان پر نظر پڑتی ہے تو آپ کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ ممکن ہے وہ کچھ دیر آپ کے پاس بیٹھیں تو آپ کو بدصورت لگنے لگے۔ کچھ لوگ مدھم فوار کی طرح ہوتے ہیں، ذہن کی مٹی انہیں دیر میں جذب کرتی ہے لیکن آخرکار سودی سودی خوشبو دینے لگتی ہے۔ وہ اپنے بیگ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بولی، میں زبانی شاید آپ کو صحیح طور پر نہ بتا پاؤں، میرے پاس مونا کی ایک بہت اچھی تصویر موجود ہے جو اس کی اصل شخصیت کی بالکل صحیح عکاسی کرتی ہے۔ میں وہ آپ کو دکھاتی ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اس نے بیگ سے خاصے بڑے سائز کی ایک تصویر نکال کر میری طرف بڑھا دی۔ وہ ایک رنگین اور فل فگر تصویر تھی، یعنی مونا اس میں سر سے پاؤں تک نظر آ رہی تھی۔ میں ایک ٹک اس تصویر کو دیکھتا رہ گیا۔ دراصل وہ تصویر اتنی خوبصورت تھی کہ اس پر سے فوری طور پر نظر ہٹانا ذرا مشکل کام تھا۔ عذرا کہہ چکی تھی کہ وہ تصویر اس کی بہن کی شخصیت کی صحیح عکاسی کرتی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ محض تصویر ہی خوبصورت نہیں تھی بلکہ اس کی بہن مونا سچ مچ ایک خوبصورت لڑکی تھی، اور دلچسپ بات یہ تھی کہ اس نے اپنی خوبصورتیوں کو نمایاں کرنے کی بھی پوری کوشش کی تھی۔ لہذا پوز کچھ ایسا تھا کہ اسے دیکھنے کے بعد دھڑکنوں کا تھوڑا بہت تیز ہونا بھی لازمی تھا۔ انداز بتاتا تھا کہ لڑکی کو تصویر کھنچوانے کا شوق بھی کافی تھا۔ اس کے خوبصورت بھورے گھنگریالے بال اس کے بیضوی چہرے کے گرد ایک دلکش ہالہ بنائے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں مخمور سی دکھائی دے رہی تھیں، شاید یہ تھوڑی سی ایکٹنگ کا نتیجہ تھا۔ بھرے بھرے ہونٹ نیم بات ہے، صرف اس کے ہونٹوں میں عذرا کی مشابہت نظر آ رہی تھی اور کسی بھی چیز میں نہیں۔ میرے لیے اس کی تصویر دیکھ کر ہی اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ وہ اونچی اڑان کی خواہش رکھنے والا پرندہ تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھی جن کے دل میں اگر کچھ ہو تو اس کی تکمیل کے لیے وہ کچھ بھی کر گزرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ سر سے پاؤں تک وہ دلکش نشیب و فراز کا مجموعہ تھی، اور انہیں اجاگر کرنے کے معاملے میں اس کا انداز ایک شوق گرز کا تھا۔ عذرا نے اپنا جو گھریلو پس منظر بتایا تھا اسے ذہن میں رکھتے ہوئے مونا کا تصویر کھنچوانے کا یہ انداز میرے لیے ذرا دلچسپ بھی تھا اور کچھ حیرت انگیز بھی۔ چند لمحے تصویر کو ایک ٹک دیکھتے رہنے کے بعد میں نے سر اٹھا کر گویا ایک نئے زاویہ نظر سے عذرا کی طرف دیکھا اور بے اختیار پوچھا، کیا یہ تمہاری ہی بہن ہے؟ میرا مطلب ہے سگی بہن ہے۔ اس نے افسردگی سے مسکراہٹ کے سر جھکا لیا، گویا یہ سوال اس کے لیے متوقع تھا۔ اس بار وہ بولی تو اس کے لہجے میں کچھ ایسا فخر کا عنصر شامل نہیں تھا۔ مجھے اور اسے دیکھنے کے بعد تقریباً ہر شخص یہی سوال کرتا ہے۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، تب تو میں اپنا سوال واپس لیتا ہوں کیونکہ مجھے ایسے سوالات کرنا زیادہ پسند نہیں جو ہر شخص کرتا ہو۔ میں نے جلدی سے کہا، بہرحال اس کا جواب اس بات میں ہے۔ وہ سر اٹھاتے ہوئے بولی۔ اس کے چہرے پر نہایت خفیف سا جو گلابی رنگ چھلکایا تھا وہ ابھی برقرار تھا۔ اس نے ذرا بزدلانہ انداز میں پہلو بدلا، پھر ٹانگ پر ٹانگ رکھ لی اور اپنا ہینڈ بیگ اٹھا کر گود میں رکھ لیا۔ ایک بار اسے کھول کر اس میں جھانکتے ہوئے ادھر ادھر ہاتھ مار کر اس نے کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا اور میری طرف بڑھایا۔ اس کی پتلی پتلی سفید انگلیوں میں اب بھی ہلکا سا ارتعاش تھا جو نہ جانے کیوں اس کی شخصیت کے ساتھ بھلا لگ رہا تھا۔ یہ وہ ایڈریس ہے جس پر میں مونا کو تلاش کرنے گئی تھی اور جس پر ہم اسے خط لکھتے رہے ہیں، اس نے بتایا۔ میں نے کاغذ اس کے ہاتھ سے لے کر محض سرسری سی نظر ڈال کر پیپر ویٹ کے نیچے رکھ دیا۔ وہ اندرون شہر کے ایک پرانے علاقے کا ایڈریس تھا۔ تو پھر آپ میری بہن کو تلاش کر دیں گے نا؟ اس نے پر امید لہجے میں پوچھا۔ نہیں، میں نے 2 ٹوک لہجے میں جواب دیا۔ اس کی پھیلی ہوئی سی آنکھیں کچھ اور پھیل گئیں، ایک بار پھر ان میں آنسو چھلک لگے۔ کیوں؟ اس نے رودی ہوئی سی آواز میں پوچھا۔ اس لیے کہ یہ میرا کام نہیں ہے، میں نے ملائمت سے جواب دیا۔ یہ 1.5 کروڑ آبادی کا شہر ہے، اس کے گلی کوچوں میں نت نئے عذاب پل رہے ہیں۔ میں کہاں تمہاری بہن کو ڈھونڈتا پھروں گا؟ یہاں 15-20 ہزار افراد پر مشتمل پولیس فورس تعینات ہے۔
उनके पास वसाइल और इख्तियारात मौजूद हैं। उन्हें इस किस्म के कामों के लिए रखा गया है। तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए। हाँ, जिस तरह पुलिस ने आज तक अपने हिस्से के दूसरे काम अंजाम दिए हैं, इसी तरह वो मेरी बहन को भी तलाश कर देंगे। वो जहरीले लहजे में बोली। आंसू एक बार फिर उसकी आंखों से रवां हो गए। चश्मा उतार कर उसने मेज पर रख दिया और एक बार फिर टिश्यू पेपर का सहारा लिया। मैंने कहा ना कि मुझे तुम्हारी मदद करने से इनकार नहीं है। मैं पुलिस को ऊपर से टेलीफोन करवा दूंगा। वो रवायती अंदाज में तुम्हारी बहन को तलाश नहीं करेगी और ना ही कोई स्कैंडल बनने देगी। अगर इस मामले को खरीदने से कोई स्कैंडल निकल भी आया तो वो उसे दबा देगी। मैं खुद इस बात का ख्याल रखूंगा। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने बेबसी से कहा। बस आपकी बड़ी मेहरबानी, आप इतनी भी जहमत मत कीजिए। वो एकदम ही गोया फट पड़ी। मैंने ख्वाह ही आपके पास आकर अपना और आपका वक्त ज़ाया किया। वो यूं झटके से कुर्सी से उठी कि कुर्सी उलट गई। उसके अंदाज से बेपनाह ताकत और तवानाई की मौजूदगी का इजहार हुआ था। मुझे तवक्को नहीं थी कि ऐसी ढांचा सी लड़की में इतनी तवानाई होगी, लेकिन इस दुनिया में किसी के बारे में उस वक्त तक यकीन से कुछ कहना बहुत मुश्किल होता है जब तक उसे बहुत करीब से देखने का मौका न मिले। आंसू उसकी आंखों से अब भी रवां थे, लेकिन उसने अब उन्हें पूछने की कोशिश नहीं की और बैग कंधे पर लटका कर जाने के लिए तेजी से घूम गई।